ہم سب کو عام طور پر یہی لگتا ہے نا کہ کامیابی کا راز شاید دن میں 14-15 گھنٹے مسلسل کام کرنے میں چھپائے۔ ہاں بالکل، اور لوگ اس کو بڑا گلوریفائی بھی کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، مطلب ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اسکرین کے سامنے بیٹھے ہوئے تھکاوٹ سے بالکل چور نہیں ہو رہے، یا ہماری ٹیبل پر نا فائلوں کا ڈھیر نہیں لگا ہوا، تو ہم شاید زندگی میں آگے ہی نہیں بڑھ رہے۔ ایک گلٹی فیلنگ آنے لگتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ دفتر میں ہونے والی ہماری 90% محنت، مطلب آلموسٹ 90%، شاید کسی کھاتے میں ہی نہیں آتی؟ یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا 90% حصہ بالکل فضول ہے۔ یہ سننے میں کافی عجیب لگتا ہے، لیکن ہے نا؟ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد اسی عجیب و غریب مگر بالکل سچی حقیقت کا خلاصہ کرنا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کام کے اس ذہنی دباؤ، یا جسے ہم اوورویلم کہتے ہیں، اس کو کم کر کے دراصل اپنی پیداواری صلاحیت اور خوشی کو کئی گنا کیسے بڑھایا جا سکتا ہے۔ صحیح، ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ زیادہ وقت دینا اور خود کو ہلاک کر دینا ہی اصل کارکردگی ہے، مگر آج کے اس بحث میں جو تحقیق ہمارے سامنے ہے نا، وہ اس روایتی سوچ کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ بالکل۔ غیر ضروری بوجھ سے نکلنے کا راستہ اکثر ان چیزوں میں نہیں ہوتا جو ہم مزید حاصل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا تعلق ان چند چیزوں سے ہے جن پر ہماری مکمل توجہ ہوتی ہے۔ چلیے اس بات کو ذرا کھول کر سمجھتے ہیں۔ شروعات میں مجھے تھیوڈور روزویلٹ کا ایک بہت مشہور قول یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا، جو تم کر سکتے ہو، جو تمہارے پاس ہے، جہاں تم ہو وہیں سے شروع کرو۔ بڑی زبردست لائن ہے یہ، ہے نا؟ یہ قول اپنے اندر ایک عجیب سی طاقت رکھتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کامیابی کا تعلق وسائل کی فراوانی یا دن میں اضافی گھنٹے نکالنے سے نہیں ہے، بلکہ اس بات سے ہے کہ ہم اپنے موجودہ حالات میں کتنے مؤثر انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کی اس تحقیق کا مرکز ایک ایسی ہی سوچ ہے جسے لا آف 3 یعنی 3 کا قانون کہا جاتا ہے۔ اب اگر ہم اس لا آف 3 کی گہرائی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بہت مضبوط نفسیاتی اصول کام کر رہا ہے۔ ہم سب نے پریٹو پرنسپل، یعنی وہ 80-20 والا 80-20 کا اصول تو سن رکھا ہوگا نا؟ ہاں، کہ ہماری 20% کوشش 80% نتیجہ دیتی ہے۔ بالکل، لیکن یہاں تحقیق ایک قدم مزید آگے جاتی ہے۔ یہاں 90-10 یعنی 90-10 کی بات ہو رہی ہے۔ اس مطالعے کے مطابق کسی بھی فرد کی کارکردگی اور اس کی اصل قیمت کا 90% حصہ صرف 3 بنیادی کاموں پر مبنی ہوتا ہے۔ صرف 3 کام۔ رکیے، مطلب صرف 3 کام؟ ایک عام فہرست میں تو چاہے 50 کام لکھے ہوں۔ وہی تو، چاہے 50 کام ہوں، لیکن ادارے کو یا کسی بھی کاروبار کو جو اصل منافع پہنچ رہا ہے وہ ان 50 میں سے صرف انہی 3 کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر دماغ اس بات کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتا۔ بچپن سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ چھوٹا بڑا ہر کام اہم ہوتا ہے اور ہر کام خود کرنا چاہیے۔ یہ ماننا کہ باقی 47 کام واقعی بیکار ہیں کافی مشکل لگتا ہے۔ آخر ان باقی کاموں کا کرتے کیا ہیں لوگ؟ ان باقی کاموں کی تقسیم واضح ہے، یا تو وہ معاون کام ہوتے ہیں جنہیں ہم سپورٹ ٹاسکس کہتے ہیں، یا پھر انہیں کسی اور کے حوالے کیا جا سکتا ہے، جسے ڈیلیگیٹ یا آؤٹ سورس کرنا کہتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جنہیں اگر مکمل طور پر ختم بھی کر دیا جائے تو کسی کو خبر تک نہیں ہوگی۔ واقعی۔ ہاں، اس بنیادی بات کو سمجھنے کے لیے ان دستاویزات میں سنتھیا نام کی ایک خاتون کی کہانی بیان کی گئی ہے جو سچی کہانی ہے اور واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ او ہاں، سنتھیا کی کہانی اس تحقیق کا ایک بہت دلچسپ حصہ ہے۔ وہ ایک ٹیک کمپنی میں پچھلے 8 سال سے کام کر رہی تھی، اور اس کی زندگی کا معمول آج کل کے کسی عام آفس ورکر سے مختلف نہیں تھا۔ بالکل، وہ دن میں 10 سے 12 گھنٹے اور ہفتے میں 6 دن مسلسل کام کرتی تھی۔ اس کا مسئلہ یہی تھا کہ کام کا بوجھ اتنا زیادہ اور وقت اتنا کم کہ وہ اپنے شوہر اور 2 چھوٹے بچوں کے لیے وقت ہی نہیں نکال پاتی تھی۔ مکمل طور پر برن آؤٹ کا شکار تھی وہ۔ صحیح کہا، اسے لگتا تھا کہ شاید ساری زندگی اس دلدل میں ہی گزر جائے گی۔ پھر تبدیلی تب آئی جب اس نے اپنی ذمہ داریوں کا جائزہ لیا۔ سنتھیا نے ایک فہرست بنائی تو دیکھا کہ وہ عام دنوں میں 17 مختلف کاموں کی ذمہ دار تھی۔ 17 ٹاسکس؟ 17؟ او بھائی۔ ہاں، تو اسے کہا گیا کہ تصور کرو کہ کل تمہیں ان 17 میں سے صرف ایک کام کرنے کی اجازت ہو، تو وہ کون سا کام ہوگا جو اس کمپنی کو سب سے زیادہ ویلیو دے گا؟ اس نے سوچ کر وہ ایک کام چنا۔
अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उससे पूछा गया कि अगर दूसरा काम चुनना हो तो वो क्या होगा, और फिर तीसरा। जब उसने गौर किया तो नतीजा हैरानकुन था। सिंथिया ने महसूस किया कि उन 17 में से 14 काम ऐसे थे जो वक्ती तौर पर मसरूफ तो रखते थे, लेकिन असल वैल्यू सिर्फ उन 3 कामों में ही की। और इस एहसास के बाद सिंथिया ने जो कदम उठाया वो वाकई बहुत बहादुरी का था। उसने क्या किया? अगले ही दिन वो अपने बॉस के पास गई और उसने एक बहुत अजीब पेशकश की। उसने कहा कि वो बाकी तमाम छोटे मोटे कामों को दूसरों के हवाले करना चाहती है ताकि वो अपना पूरा वक्त और सारी तवानाई सिर्फ इन 3 अहम कामों पर लगा सके। वाओ, ये तो काफी रिस्की मूव था। तो सही, मगर उसने शर्त भी रखी। उसने कहा कि अगर वो उन 3 कामों पर फोकस करके अपनी कारकर्दगी और आउटपुट को डबल कर लेती है तो उसकी तनख्वाह भी डबल होनी चाहिए। और बॉस मान गया? बॉस ने जैसे ही लिस्ट देखी उसे तस्लीम करना पड़ा कि सिंथिया का तज्जिया बिल्कुल ठीक था। उसने मदद की, बाकी काम बाकी लोगों को डेलीगेट किए। अब नतीजा सुने। ये कोई साल भर का प्रोजेक्ट नहीं था, सिर्फ 30 दिन के अंदर सिंथिया की असल आउटपुट डबल हो गई। 30 दिन में? क्या बात है। और बॉस ने वादा निभाते हुए इनकम भी डबल कर दी। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि अब उसका दफ्तर का वक्त सुबह 8 से शाम 5 बजे तक महदूद हो गया। वीकेंड्स पर फरागत मिल गई ताकि खानदान को वक्त दे सके। ये वाकई एक परफेक्ट मिसाल है। मुझे ना ये अमल बिल्कुल किसी बागबान या माली जैसा लगता है जो एक पुराने दरख्त की छंटाई या प्रूनिंग कर रहा हो। अच्छा, किस तरह? देखें, जब हम दरख्त की फजूल शाखें और सूखे पत्ते काट देते हैं तो दरख्त को नुकसान थोड़ी पहुंचता है। असल में जो पानी और ग़िज़ा जड़ों से आ रही होती है वो पहले उन दर्जनों फजूल शाखों में तकसीम होकर ज़ाया हो रही थी। सही, तवानाई बंट रही थी। बिल्कुल। जब उन फजूल तहलियों को काट दिया जाता है तो वो सारी तवानाई सिर्फ उन 3 या 4 अहम शाखों में जाती है। नतीजतन दरख्त की जड़ें मजबूत होती हैं और फल पहले से ज्यादा बड़ा और मजेदार पैदा होता है। ये दरख्त वाली तशबीह मुकम्मल तौर पर इस नफ्सियाती हकीकत को वाज़े कर देती है। हमारी तवानाई महदूद है ना। जब हम उसे 17 जगहों पर तकसीम करते हैं तो हर चीज़ औसत या मामूली रह जाती है, मगर जब वही तवानाई सिर्फ 3 जगह जाती है तो नतीजा लाजवाब होता है। लेकिन चलिए, यहाँ एक बहुत अमली मसला आकर खड़ा होता है। हमने समझ लिया कि दरख्त को काटना है, मान लिया कि सिर्फ 3 काम अहमियत रखते हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन 3 कामों को पहचाना कैसे जाए। सही सवाल है। इस शोरो गुल वाली दुनिया में जहां हर ईमेल पर अर्जेंट लिखा होता है, हर मैसेज ASAP का तकाजा करता है, वहां कोई भी फर्द अपनी असल आवाज, अपने असल मकासद कैसे तलाश करे? इस मसले के हल के लिए ना इस तहकीक में क्विक लिस्ट मेथड का जिक्र आया है, यानी फहरिस्त बनाने का तेज तरीन अमल। और इसका तरीक़ाकार बहुत सादा मगर इंतहाई असरअंगेज है। वो कैसे? एक कागज और कलम लीजिए और आपके पास सिर्फ 30 सेकंड्स है, सिर्फ 30 सेकंड्स। इन 30 सेकंड्स के अंदर अपनी जिंदगी के 3 सबसे अहम मकासद कागज पर लिख डालिए। बस वक्त शुरू। लोग पहाड़ों पर जाकर ध्यान लगाते हैं, महीनों और सालों किताबें पढ़ते हैं। 30 सेकंड्स की जल्दबाजी में जो फैसले होंगे, क्या वो वक्ती जज्बात का शिकार नहीं होंगे? आपका पॉइंट बिल्कुल वजनी है। पहली दफा सुनने में ये एक मजाक ही लगता है, लेकिन इस 30 सेकंड के सख्त पाबंदी के पीछे एक बहुत गहरी और ठोस न्यूरोबायोलॉजिकल वजह है। दिमागी साइंस इन्वॉल्व है इसमें? बिल्कुल। दिमाग का आगे वाला हिस्सा, जिसे हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं ना, वो ओवरथिंकिंग का मरकज है। ये वो हिस्सा है जो समाज की तवक्कुआत, दूसरों के दबाव, शुकूक व शुबहात और हजारों ख्यालात का बोझ उठाता है। सही। जब हम किसी से कहते हैं कि भाई 2 घंटे सोचकर अपने मकसद बताओ, हाँ। तो दरअसल उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहानियां घड़ने लगता है। वो ऐसी बातें लिखने लगता है जो शायद दूसरों को अच्छी लगें या जो सोशली एक्सेप्टेबल हों। अच्छा, तो यानी हम अपनी असलियत पर खुद ही पर्दे डाल लेते हैं जब हमें सोचने का ज्यादा वक्त मिलता है। एग्जैक्टली। लेकिन जब वक्त सिर्फ 30 सेकंड्स तक महदूद हो जाता है तो दिमाग पैनिक में आता है और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कंप्लीटली बाईपास हो जाता है। वाओ। वक्त की शेडेड कमी दरअसल इन तमाम फजूल सोचों को रास्ते से फौरन हटा देती है। ऐसे वक्त में इंसान का तहत-ओ-शऊर यानी सबकॉन्शियस माइंड हाइपर ड्राइव में चला जाता है और सबकॉन्शियस को हमेशा पता होता है कि हमारे लिए असल अहमियत किस चीज की है। तो जब ओवरथिंकिंग का वक्त ही नहीं बचता
तो अंदर की सच्ची आवाज निकल आती है। कासिद लोग इस आधे मिनट में लिखते हैं वो बिल्कुल उतने ही दुरुस्त और हकीकी होते हैं जितने शायद वो 3 घंटे के गहरे ध्यान के बाद लिखते। ये वाकई हैरत अंगेज है। दिमाग की इस साइंस को समझकर लगता है कि असल मसला हमारा जानना नहीं बल्कि खुद को मानना है। सही बात है। और इन दस्तावेजात में एक और मजेदार बात भी सामने आई कि जब हजारों लोगों के मकासद इस 30 सेकंड की मशक के बाद इकट्ठे किए गए तो 80% से ज्यादा लोगों के वो 3 मकासद बिल्कुल मुश्तरक थे। उनका आपस में फर्क ही नहीं था। पहला मकसद हमेशा मालियत या करियर से मुतालिक था, दूसरा खानदान या अहम रिश्तों के हवाले से था और तीसरा सेहत या फिटनेस के बारे में था। ये हकीकत इस बात का खूबसूरत सबूत है कि इंसानी फितरत बुनियादी तौर पर एक जैसी चीज़ों की तलबगार है। हम सब अंदर से एक बेहतर आमदनी, मोहब्बत भरे रिश्ते और एक सेहतमंद जिस्म चाहते हैं। और इस मशक का एक फ़ायदा ये भी है कि इसे सिर्फ जिंदगी के मकासद तक महदूद नहीं रखा जाता। इसे हम 7 मुख्तलिफ शोबों में आजमा सकते हैं। जैसे अपने कारोबारी मकासद तय करने के लिए 30 सेकंड्स, खानदानी मकासद के लिए अलग 30 सेकंड्स, यहाँ तक कि अगर ये लिखना हो कि इस वक्त की 3 सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं, उसके लिए भी सिर्फ 30 सेकंड दिए जाते हैं। ये असल में किसी भी इंसानी जिंदगी का एक सच्चा स्नैपशॉट निकाल कर सामने रख देता है। बिल्कुल। चलिए, मान लिया कि हमने 30 सेकंड में अपने मकासद तय कर लिए और हमने सिंथिया की तरह अपनी 3 अहम तरजीहात भी पहचान ली। मगर मकासद का मिल जाना और उन्हें अमल में लाना, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। ये तो है। इम्प्लीमेंटेशन सबसे मुश्किल मरहला है। हाँ ना, जब एक फर्द सोमवार की सुबह अपने दफ्तर पहुंचता है तो दुनिया उसके मकासद की कदर थोड़ी करती है। अचानक ईमेल्स की बारिश होती है, मीटिंग्स शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ आकर इन मकासद को बचाने के लिए वक्त की तंजीम यानी टाइम मैनेजमेंट शुरू होती है। सही। लेकिन टाइम मैनेजमेंट सुनते ही फौरन ख्याल आता है कि शायद अब और जल्दी बेदार होने या दफ्तर में और लंबा बैठने का भाषण दिया जाएगा। और यहीं आकर हमारी अमूमी समझ सबसे बड़ी गलती करती है। टाइम मैनेजमेंट का मकसद किसी भी तौर पर इजाफी या ज्यादा काम करना नहीं है। अगर हम वक्त बचाने के नतीजे में मजीद काम कर रहे हैं तो हम वक्त बचा नहीं रहे, बल्कि मजीद गुलाम बन रहे हैं। एग्जैक्टली। एक बहुत गहरे मुताले के मुताबिक इंसानी जिंदगी की 85% खुशी दूसरों के साथ, खास तौर पर अपनों के साथ अच्छे रिश्ते कायम करने से मिलती है। टाइम मैनेजमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि दफ्तर के अहम कामों को जल्दी और मौसर अंदाज में निपटाया जाए, ताकि शाम को प्यारों के साथ फेस टाइम यानी आमने सामने का वक्त गुजारा जा सके। बिल्कुल, बगैर किसी तनाव के। अगर इस उसूल को आसान लफ्जों में समझा जाए तो तहकीक वाज़े करती है कि काम की जगह पर वक्त का मेयार यानी क्वालिटी अहम है और घर पर वक्त की मिकदार यानी क्वांटिटी। यहाँ एक बड़ा सख्त जुमला इस्तेमाल किया गया है, वर्क ऑल द टाइम यू वर्क। इसका मतलब है कि जब दफ्तर में हो तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ काम पर देना चाहिए और गुपशुप यानी आइडल चिट-चैट से मुकम्मल गुरेज करना चाहिए। और इस बात को वाजे करने के लिए इन कागजात में एक मेंढक यानी फ्रॉग की तस्वीर का हवाला है। मेंढक, ये मार्क ट्वेन वाला हवाला है ना? हाँ, मार्क ट्वेन का मशहूर तमसीली उसूल ईट दैट फ्रॉग। इसके मुताबिक दिन का जो सबसे बड़ा और मुश्किल काम होता है, जो देखने में किसी भद्दे मेंढक जैसा लगता है, जिसे निगलना मुश्किल हो, उसे दिन के आगाज में ही निपटा लेना चाहिए। मेंढक को खाना वाकई अजीब मिसाल है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जब कोई सुबह सवेरे अपना सबसे बड़ा और डरावना काम मुकम्मल कर लेता है तो उसके दिमाग में डोपामीन का एक बहुत बड़ा हिट मिलता है उसे। बिल्कुल, इनाम मिलता है दिमाग को। ये डोपामीन एक जबरदस्त तवानाई पैदा करता है। इसके बाद दिन का हर दूसरा काम बिल्कुल मामूली और आसान लगने लगता है। एक मोमेंटम बन जाता है जो सारा दिन जाया होने से बचा लेता है। ये मोमेंटम ही असल ताकत है जो तवानाई को बिखरने से रोकती है। लेकिन इस हिस्से की एक बात पर मैं जरूर थोड़ा सा सवाल उठाऊंगा। वो जो अभी बात हुई ना कि वर्क ऑल द टाइम यू वर्क और दफ्तर में गुपशुप बिल्कुल बंद कर देना, ये कुछ ज्यादा ही रोबोट बनने वाली बात नहीं लगती? बहुत से लोग यही सोचते हैं शुरू में। हम सब इंसान हैं, सोशल इंटरेक्शन तो चाहिए होता है। वाटर कूलर पर खड़े होकर या चाय पीते हुए दोस्तों से बात ना की जाए तो दफ्तर का माहौल बिल्कुल बेजान नहीं हो जाएगा? ये बिल्कुल फितरी तशवीश है।
लेकिन इस बात को अखलाकी बुराई के तौर पर नहीं देखें, इसे एनर्जी लीक या तवानाई के ज़ाया होने के तौर पर देखना चाहिए। अच्छा, एनर्जी लीक। हाँ, मकसद ये हरगिज नहीं कि किसी से मुस्कुराना छोड़ दिया जाए। मकसद उस वक्त को बचाना है जो बहस मुबाहिसे और गीबत में घंटों तक चला जाता है। होता यह है कि अगर दफ्तर में 2 घंटे इन इधर उधर की बातों में गुजर गए तो वो काम जो 5 बजे तक निकल जाना था वो शाम 7 बजे तक खिंच जाता है, और फिर वो काम ईमेल्स की शक्ल में इंसान अपने साथ घर की टेबल पर ले आता है। एग्जैक्टली। और नतीजा क्या निकलता है? फर्द दफ्तर से सिर्फ थकान ही नहीं बल्कि अगले दिन का स्ट्रेस भी घर लेकर आता है। तो सच्चाई ये है कि दफ्तर की वो गुपशुप मुफ्त नहीं थी, वो घर वालों के वक्त की कीमत पर आई थी। वाओ, ये सोचने का कितना अजीब मगर सच्चा जाविया है। हम दोस्तों के साथ किए गए मजाक की कीमत दरअसल अपने बच्चों के साथ खेलने के वक्त से अदा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। इस उसूल के बुनियादी रो बहुत हमदर्दाना है। ये कहती है कि दफ्तर में अपना 100% काम पर लगा दें ताकि जब शाम को घर का दरवाजा खुले तो खानदान को एक जिंदा दिल और पुरसुकून शख्स मिले, एक चिड़चिड़ा और थका हुआ इंसान नहीं। सही है, लेकिन अब मसला फिर वही पुराना है। दफ्तर में इंतहाई फोकस के साथ काम करना और घर आकर इंतहाई क्वालिटी का वक्त देना। एक इंसानी दिमाग 2 इंतहाओं के दरमियान खेलेगा तो वर्क लाइफ बैलेंस की तो धज्जियां उड़ जाएंगी। ये तवाज़ुन मिलेगा कहाँ से? कदीम यूनानियों ने एक बहुत उम्दा फलसफा पेश किया था, मॉडरेशन इन ऑल थिंग्स, यानी हर चीज में एतदाल। मसला ये है कि आज के दौर में तवाज़ुन को एक मंजिल समझ लिया गया है, जैसे पहाड़ की चोटी हो जहां पहुंचकर बस तस्वीर खिंचवानी है। हाँ, और फिर सुकून ही सुकून है। मगर इस तहकीक में टाइट रोप वॉकर यानी रस्सी पर चलने वाले कराताबाज की जो मिसाल दी गई है वो इस गलत फहमी को दूर करती है। आम लोग सोचते हैं कि रस्सी पर चलने वाला अपना तवाज़ुन कब मुकम्मल हासिल करता है। मैंने इन करातेबाजों को देखा है। इस सवाल का साफ जवाब है कि किसी भी वक्त नहीं। जब एक करातेबाज उस पतली सी रस्सी पर चलता है तो वो कभी भी एक जगह खड़ा होकर स्टैटिकली बैलेंस नहीं हो जाता। वो मुसलसल अपनी छड़ी को हिलाता रहता है, माइक्रो एडजस्टमेंट्स करता है, राइट? बिल्कुल। कहीं हवा तेज होती है तो दाईं तरफ झुक जाता है, कभी कदम डगमगाता है तो बाईं तरफ वजन डालता है। ये एक हरकत है जो मुसलसल चल रही होती है। जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस भी बिल्कुल इसी तरह एक लगातार अमल है। ये माइक्रो एडजस्टमेंट्स ही जिंदगी हैं। वर्क लाइफ बैलेंस एक वर्ब है, नाउन नहीं। आपको हर रोज दिन के हर हिस्से में ये तय करना होता है कि कब काम को तरजीह देनी है और कब घर को। सही। इन कागजात में स्मेल द फ्लावर्स कहा गया है, वो ये है कि इस सफर की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होना कभी ना भूलें। अगर कोई शख्स मेहनत करते करते खिले फूलों की महक को महसूस करना भूल जाए तो उस मेहनत का मकसद ही फौत हो जाता है। हम पैसे इसलिए कमाते हैं कि जिंदगी बेहतर हो। जिंदगी इसलिए नहीं मिलती कि सिर्फ मेहनत की एक दलदल बनी रहे। वाकई। तो अगर हम आज की इस पूरी गुफ्तगू, इन तमाम तहकीक को आसान लफ्जों में समेटें तो हमने देखा कि कैसे सिंधिया की कहानी ने साबित किया कि 90% नतीजा सिर्फ 3 कामों से आता है। फिर हमने उस हैरत अंगेज 30 सेकंड की मश्क में बात की जहां हमारा तहतुश शऊर हमारे सबसे अहम मकासद पहचान लेता है। और फिर वो अहम तरीन सबक कि टाइम मैनेजमेंट दिन में वक्त निकालना नहीं बल्कि दरअसल घर के लिए एनर्जी बचाना है। बिल्कुल। दिन का सबसे डरावना मेंढक सुबह सबसे पहले खा लें। दफ्तर में सिर्फ काम करें ताकि आप अपने रिश्तों को अपना बेहतरीन रूप दे सकें। और तवाज़ुन एक मंजिल नहीं बल्कि एक हरकत है। ये सब नुकात मिलकर हमें आगे बढ़ने का एक बहुत वाज़ेह, पुरसकून और बामकसद रास्ता दिखाते हैं। और अब जबकि हम इस तफसीली जायजे के आखिर में पहुंच गए हैं, छोड़ने से पहले मैं एक अजीब सा ख्याल और सवाल पेश करना चाहता हूं जिस पर बाद में कभी ध्यान जरूर दीजिएगा। हमने बात की कि 3 अहम काम हमें कामयाबी की बुलंदी तक ले जाते हैं, यानी दरख्त की चटाई करके 3 अहम शाखों को बचा लिया जाता है। सही। मायनी मसरूफियात हैं जिन्हें आपकी जिंदगी से, आपके दरख्त से हमेशा के लिए काट कर फेंक देना चाहिए। ऐसी कौन सी टहनियां हैं जो बगैर कोई फल दिए दिन रात आपका वक्त और आपकी एनर्जी चूस रही हैं? बड़ा अहम सवाल है ये। अगर आज उन 3 छोटी सी गैर जरूरी चीजों को काट कर कुर्बान कर दिया जाए तो क्या जिंदगी का एक मुकम्मल और बेहतरीन बाब
कल ही खुलकर सामने नहीं आ जाएगा? इस सवाल पर ध्यान जरूर दीजिएगा।